Hello students, now this is Shivam Misra again. Now I will continue some more things. We have already studied about the topic ellipse. Now we will see some more data and things about the ellipse and some questions about the ellipse. So let me remind you once again about the ellipse and its typicalness, what the things you have studied already. You will see that once again our subject is maths for class 11th. Now this was the ellipse and you know how it is formed and how the equations is. So here it was F1, here it was F2 and you are taking any point P, then this relation we have studied that F1P plus F2P equal to 2A. F1P plus F2P equal to 2A. This relation we have seen already. Now we will move ahead. And what about the focus point and the vertex point? That all I have mentioned. The foci coordinate was C, 0 plus minus C, 0 and vertex coordinate plus minus A, 0. Length of letter rectum 2b square by A. Eccentricity E equals to under root of 1 minus B square by A square. Another relation for eccentricity E equals to C by A. So these are the formulas which you have studied already. That F1P plus F2P equal to 2A, which the locus of all such point will be called an ellipse. The locus of all such point will be called an ellipse. And foci coordinate plus minus C, 0, where this one is the focus 1 and focus 2. So the coordinate will be C, 0 and minus C, 0. Coordinate to the vertex plus minus A, 0 plus minus A, 0 for here A, 0 minus A, 0. And for this one we can have plus minus B, 0, 0, B, not B, 0, but it is 0, B. The y-axis is light, so the coordinate will be 0, B for here and for here 0, minus B. And length of letter rectum you know well that the distance, if you are drawing a line from the focus point, this length will be called as the letter rectum. This distance will be called as the letter rectum, and letter rectum will be 2b square upon A. The letter rectum value of letter rectum will be 2b square upon A. Eccentricity formula you know well. E equals to under root of 1 minus B square by A square. You know well how to find the eccentricity and from where to calculate the A and B value. E equal to C by A. Another formula for the eccentricity. And what was the equation? The equation was x square by A square plus y square by B square equal to 1. X square by A square plus y square by B square equal to 1. And for the given portion, that A greater than B. For this figure we have A greater than B. For this figure we have once again A greater than B, and the equation will be x square by A square plus y square by B square equal to 1. Now let me tell you about another figure. Suppose we have ellipse like in y-axis. Ellipse in y-axis. So what will be the here it will be the focus F1, F2. The coordinates will be here will be the vertex, and this will be the length of letter rectum. And the relation, suppose we are taking point P over here, P. The relation will be once again. The relation will be same. F1P plus F2P equal to 2A. And now the distance lies in the y-axis, major axis in the y-axis, so the distance will be not 2A, it will be 2B. The distance will be 2B. And now the focus coordinate we have A, 0 in that figure. Now C, 0, foci coordinate plus minus C, 0. That again we will have C, 0 only, and the coordinate will be 0, plus C and 0, minus C. 0, plus C and 0,
minus length of letter rectum will be 2b square upon a. Earlier also, now if you are taking b greater than a, then 2a square upon b. 2a square upon b. And another thing, coordinates of the vertex plus minus a comma 0. What the major axis in that portion? Now it will be the minor portion, and this one will be the major portion. So 0 comma plus minus b, 0 comma plus minus b, my fault. 0 comma plus minus b will be the major portion, and this will be the minor portion. Eccentricity 1 minus b square by a square was the earlier formula for this figure. Now the formula will be changed. 1 minus a square by b square. 1 minus a square by b square. Eccentricity was e equal to c by a. Now the formula will be e equal to c by a only. The formula remains same for the eccentricity, e equal to c by a, where a was the major axis here, and now we have b as the major axis, so we will use here b, e equal to c by b. Just try to remember that in this case we have a as a major distance, and in this figure we have the b as a major distance. So wherever the formula gets a, you put a b. Wherever the formula you get a, put a b over there, and wherever you get a, put it b over there. इस फिगर के लिए a मेजर एक्सिस थी, तो a को 2a मेजर डिस्टेंस था, 2a मेजर एक्सिस थी, ठीक। इस फिगर के लिए b है, तो इस फॉर्मूले में जहां जहां आपको a मिला वहां आप b पुट कर देंगे, तो इस फिगर का फॉर्मूला बन जाएगा। इस फिगर के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। आपको दो बार याद नहीं करना पड़ेगा, दो बार अलग चीजें नहीं याद करनी पड़ेगी। इस फिगर में आपने मेजर एक्सिस पढ़ा, मेजर एक्सिस कितना पढ़ा? 2a पढ़ा। इसमें माइनर एक्सिस क्या पढ़ा? माइनर एक्सिस। वो क्या पढ़ा आपने? 2b पढ़ा। मेजर एक्सिस 2a मिला, माइनर एक्सिस 2b मिला। इस फिगर के लिए जस्ट रेसिप्रोकल होने वाला है। मेजर एक्सिस जो है 2b हो जाएगा, माइनर एक्सिस जो है 2a हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से आप सारे फॉर्मूले एक साथ रिवाइज कर सकते हैं और एक साथ याद रहेंगे। एक फॉर्मूला याद रहे आपको, और आपको ये ध्यान रहे कि a मेजर एक्सिस थी, अगर फिगर ये बनेगा a माइनर हो जाएगी और b मेजर हो जाएगा। तो फॉर्मूले में जहां जहां a आया है उन सब की जगह पे b इस फिगर के लिए, और जहां जहां b आया है उन सब की जगह पे a इस फिगर के लिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, एंड नाउ वी विल सी सम क्वेश्चन ऑन इलिप्स, how to solve it and how to find its calculations. So I will take a question just from your book. One more thing, equation of directrix. So the point lies over here, this line and this line is called the directrix equation. What is it called? Directrix equation. Directrix line. And its equation x equals to minus a by e, and here it is x equals to a by e. The equation of this line equation is x equals to a minus a by e for this figure, and x equals to a by e for this figure, and similarly for that figure we will have x equals to b by e, y equal to b by e, and minus b by e. Y equal to b by e and y equal to minus b by e. This is called the equation of directrix or the line of directrix. This will be called as the equation of directrix or line of डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलेंगे इस लाइन को? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स या फिर लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। वैल्यू क्या होगी इसकी? x इक्वल्स टू माइनस a बाई e, क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस में है, ठीक। और नेगेटिव एक्सिस होने के बाद क्या है, यहाँ देखिए x एक्सिस की लाइन पे अगर आपको कोई लाइन ड्रॉ करनी हो तो x इक्वल टू कांस्टेंट की लाइन होती है। x इक्वल टू किसकी लाइन होती है? कांस्टेंट की लाइन होती है। इसका मतलब ये जो पोर्शन होगा, यहाँ पे कोई कांस्टेंट पर्टिकुलर पॉइंट है और उस पे वो लाइन ड्रॉ की गई है, तो x इक्वल्स टू माइनस a बाई, ठीक।
और यहाँ के लिए x इक्वल टू कॉन्स्टेंट की लाइन ये भी होगी, x इक्वल्स टू a by b. This line will be x equal to a by b and this line will be x equals to minus a by b. और बाकी फोकस, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, वर्टेक्स, लेटेस्ट रेक्टम, इसेंट्रिसिटी, रिलेशन, फोकाई कोऑर्डिनेट सारे आपको बताए जा चुके हैं. आई होप कि आपको सारे के सारे मेमोराइज होंगे. कुछ और हैं एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम. एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए. एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मींस दिस कोऑर्डिनेट एंड दिस कोऑर्डिनेट. एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कहलाएंगे. क्या कहलाएंगे? ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट. एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम. एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम लिखता हूं यहां पे. एक्सट्रीमिटीज of lattice rectum. Extremities means end point of the lattice rectum. क्या कहलाएंगे? End point of the lattice rectum. क्या होगा ये कोऑर्डिनेट? ये होगा प्लस माइनस ए बी प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए. प्लस माइनस ए अपॉन प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए. एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए. मीन्स इस पॉइंट के लिए, इस फिगर के लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो हमने लिखे हैं. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो प्लस में ए कॉमा प्लस में बी स्क्वायर बाई ए. ठीक, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो वाई नेगेटिव हो रहा है यहाँ पे. कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? प्लस में ए एक्स पॉजिटिव और माइनस में बी स्क्वायर बाई ए. ठीक, सिमिलरली यहाँ भी लेटेस्ट रेक्टम बनेगा. यहाँ लेटेस्ट रेक्टम का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x नेगेटिव है. यहाँ पे x क्या होगा? नेगेटिव. x की वैल्यू क्या होगी? माइनस ऑफ ए. क्या होगा? माइनस ऑफ ए एंड y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा तो b स्क्वायर बाई ए. y कोऑर्डिनेट यहाँ पॉजिटिव होगा तो b स्क्वायर बाई ए. और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x नेगेटिव माइनस ए, y नेगेटिव माइनस ऑफ b स्क्वायर बाई ए. x नेगेटिव होगा तो माइनस ऑफ ए ई, माइनस ऑफ यूज करेंगे, और y भी नेगेटिव होगा तो माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए. आपको ध्यान रखना चाहिए एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट. एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मतलब लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? फोकस पॉइंट पे जो सीधी लाइन बनेगी, जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी, उसे ही कहते हैं अपन लेटेस्ट रेक्टम. ठीक, वो डिस्टेंस जो होती है वो लेटेस्ट रेक्टम होती है. अब लेटेस्ट रेक्टम है इसका मतलब ये पैराबोला में कट कर रही होगी, काट रही होगी. ठीक, तो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है यही दूरी तो लेटेस्ट रेक्टम होती है. तो इस दूरी पे यहाँ और यहाँ कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, यहाँ और यहाँ कुछ कोऑर्डिनेट होंगे. इन्हीं कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम. एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम. और एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए. प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए. और तो एक बार यहाँ पे x पॉजिटिव y पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे. यहाँ पे देखें x पॉजिटिव y नेगेटिव, x वाला पॉजिटिव मतलब a, y वाला नेगेटिव मींस माइनस बी स्क्वायर बाई ए. यहाँ पे देखें तो x पॉजिटिव x नेगेटिव y पॉजिटिव तो माइनस a और माइनस प्लस में बी स्क्वायर बाई ए. यहाँ पे देखें x नेगेटिव y नेगेटिव दोनों नेगेटिव माइनस a और माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए. क्लियर है? ये चार कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके. क्लियर? नाउ दूसरे फिगर के लिए देखें. अगर ये वाला फिगर होगा, इस फिगर में क्या होता? यहां बनता. ठीक, तो x कोऑर्डिनेट जो है y कोऑर्डिनेट में चेंज होता है और y कोऑर्डिनेट जो है x कोऑर्डिनेट में चेंज होता है. कैसे होता? अब कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए कॉमा ए प्लस माइनस ए. प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए कॉमा प्लस माइनस ए. जो y कोऑर्डिनेट होता तो यहाँ पे और यहाँ पे जो पॉइंट मिलते तो पहले x कोऑर्डिनेट मिलते तो वो होता b स्क्वायर बाई ए. क्यों? क्योंकि अब जो मेजर एक्सिस है वो माइनर बदल जाएगी इस फिगर के अकॉर्डिंग, और जो माइनर वाली थी वो मेजर बदल गई इस फिगर में. ठीक, इस फिगर में जो मेजर था वो यहाँ माइनर बन गया और जो माइनर था वो मेजर बन गया. तो कोऑर्डिनेट भी इंटरचेंज हो जाएंगे. x कोऑर्डिनेट उधर गया, y कोऑर्डिनेट इधर आया.
प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए एंड प्लस माइनस ए। एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम मींस यही लाइन फोकस पॉइंट से कोई लाइन पास कर दीजिए परपेंडिकुलर जो कि इलिप्स के दोनों एंड पॉइंट को टच करे, एंड पॉइंट को टच करे। ठीक, तो एंड पॉइंट को टच करे तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट ए बी सी डी। ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट के तरीके हैं ए बी सी डी को बोलते हैं एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक, नाउ फोकल डिस्टेंस ऑफ पैराबोला। फोकल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? फोकल डिस्टेंस है बेटा, फोकल डिस्टेंस का मानते हैं क्या होता है? ये डिस्टेंस होती है ना, इसी कहते हैं फोकल डिस्टेंस। जो फोकस पॉइंट, ओरिजिन और फोकस पॉइंट के बीच की दूरी होती है, जो ओरिजिन और फोकस पॉइंट के बीच की दूरी है उसे ही कहते हैं फोकल डिस्टेंस। जो ओरिजिन और फोकस पॉइंट के बीच की दूरी होगी उसे क्या कहते हैं? फोकल डिस्टेंस। ये कितना होता है? a प्लस माइनस ए, a प्लस माइनस ए ई। फोकल डिस्टेंस कितना होगा? a प्लस माइनस ए ई। ठीक, क्या होगा फोकल डिस्टेंस? a प्लस माइनस ई एक्स, नॉट ए ई एक्स, a प्लस माइनस ई एक्स। ठीक है, तो फोकल डिस्टेंस कोऑर्डिनेट मालूम चल जाएंगे, फोकल लेंथ मालूम चल जाएगा, फोकल डिस्टेंस नहीं, फोकल लेंथ लीजिए और फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ए प्लस माइनस एक्स ई या ई एक्स। ठीक, तो इसका मतलब ये सारी चीजें हो गई जो आपके इलिप्स के अंदर थी और इलिप्स में टॉपिक सारे कवर हो गए। ठीक, हम लोग इससे कुछ क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हाइपरबोला पे। ठीक, हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा, सर्किल पढ़ा, इलिप्स पढ़ लिया और अब हाइपरबोला पे जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर के बाद, अगले लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? इलिप्स से कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे जिससे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकें और समझ सकें कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे होता है। टिल दैट एंजॉय कीजिए और सवाल लगाइए। थैंक यू।